Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is problem solving inequality involving in this chapter. Okay. As I told you in last class, in equality, inequality means not anything which is not equal to. Okay. And we when inequality in inequalities topic considered as equal, not equal, less than equal. These are the examples. Students, can you see the lecture on the screen? आपको screen पे lecture नजर आ रहा है? Hello Yes, miss. students. Yes. Okay. We have in this class we will solve word problems because हाँ exercise 3B consists of word problems. Exercise 3B में word problems हैं. So let's take a start. First question we have, say Sam and Alex play in the same saucer team. Last Saturday, Alex scored 3 more goals than Sam, but together they scored less than 9 goals. What are the possible number of goals Alex scored? How do we solve them, students? Here we have a question, and in which Alex and Sam are the two players. And please focus on the sentence, Alex scored 3 more goals than Sam. So let it solve. See the solution. ये इसका solution है, and we will solve the word problem with the help of equation. Okay, ये word problem है, हम इसको equation के through help solve करेंगे. Okay, solution. द नंबर ऑफ गोल्स एलेक्स स्कोर्ड, यानी कि जो एलेक्स ने गोल किए हैं उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ए से. एंड द नंबर ऑफ गोल्स सैम स्कोर्ड रिप्रेजेंटेड बाय एस. वी नो दैट एलेक्स स्कोर्ड 3 more goals देन सैम, यानी कि एलेक्स ने सैम से 3 गोल ज्यादा किए हैं. एलेक्स सैम ने जितने भी द गोल विच स्कोर्ड सैम इन विच वी एडेड 3 ऐड क्यों किए गए? क्योंकि ये एलेक्स की बात हो रही है. एलेक्स ने सैम से ज्यादा स्कोर किए हैं. ओके, एंड वी नो दैट टुगेदर दे स्कोर्ड लेस देन 9. स्टूडेंट्स, वट एवर द स्टूडेंट्स स्कोर्ड ऑफ एलेक्स एंड सैम जो है ना वो क्या है, उनका सम जो है वो किससे कम है? 9 से. एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, बट टुगेदर दे स्कोर्ड लेस देन 9 गोल्स. दोनों के मिलके 9 पॉइंट से 9 गोल से कम हुए. वी आर बीइंग आस्क्ड फॉर हाउ मेनी गोल्स एलेक्स माइट हैव स्कोर्ड. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ नंबर ऑफ स्कोर्ड विच एलेक्स मेड. ओके, उसने कितने गोल बनाए हैं या कितने स्कोर किए हैं, ये सवाल है. सो क्लास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी फाउंड द इक्वेशन सम ऑफ गोल स्कोर्ड, sum of scored of Sam plus Alex and both scored have less than 9. दोनों का जो गोल का स्कोर था वो क्या है? 9 से छोटा है. स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए मुझे. हेलो. ओके, S plus A less than 9. It's a Sam scored, it's a Alex scored, and both scored less than 9. So here, student, on the first sentence you can see that Alex scored more than Sam. Alex ने Sam से 3 गोल ज्यादा बनाए थे, तो आपके नजर आ रहा होगा, you can see A is equal to S plus 3. तो यहाँ पर हमने A की प्लेस पे, in place of A we put S plus 3, and here we add 1s become 2s plus 3. 3 the plus हो रहा है. When we shift 3 on right hand side, it changed its sign with minus. ये देखें साइन चेंज हो गई इसकी, साइन हैज चेंज इनटू माइनस साइन. ये प्लस था, उधर आके माइनस हो गया. 9 minus 3 becomes 6. We want only the score of Sam and Alex. Alex और Sam के स्कोर हमें चाहिए,
तो 2 here is multiplying. जब ये इधर multiply हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 3s are 6. So here student, we concluded, we found that सैम के कितने गोल्स थे? 3 गोल्स से कम थे, यानी कि 2 होंगे, 1 होगा, 0 होगा. ओके, लेस देन 3 मतलब सैम ने 3 गोल से कम गोल किए हैं. अब मे बी गोल स्कोर्ड 0 1 3 एंड सो ऑन. ओके, एंड एलेक्स स्कोर्ड 3. अब यहाँ से फाइनल हो गया कि एलेक्स ने सैम से 3 गोल ज्यादा किए थे. सो वी कंक्लूडेड एलेक्स स्कोर्ड 3 मोर गोल्स देन सैम. सो एलेक्स कुड हैव स्कोर्ड, अब एलेक्स के 3 से ज्यादा थे. मे बी पॉसिबल कि एलेक्स के 3 हुए हों गोल, 4 हो गए हों या 5 हो गए हों. इज देयर एनी कंफ्यूजन क्लास? यहाँ तक समझ आया? हेलो जी डियर, समझ आया? Okay. Next, let's see the next example. हम next example को देखते हैं. Class, here we have example. Just a second. Wait. Yes. Example. Joe enters a race where he has to cycle and run. जो एक पर्सन का नेम है और उसने साइकिल की रेस में पार्टिसिपेट किया है. He cycles a distance of 25 kilometer, okay, and he then runs for 20 kilometer. 25 किलोमीटर उसने साइकिल से डिस्टेंस कवर किया और जो है 20 किलोमीटर वो रन करता है. His average running speed is half of his average cycling speed. उसकी एवरेज स्पीड जो है भागने की, उसकी स्पीड साइकिल से हाफ है. जो completes the race in less than 1/2 hours. Means 1/2 hours mean क्या होगा क्लास? 2.5 hours. Talking about 2.5 hour मतलब 2.5 घंटे. Okay, what can we say about his average speed? Okay class, it's a word problem question, so please make a sense. If you have any confusion you can ask with me. आपको समझना है. सबसे पहले असाइनिंग लेटर. एवरेज रन स्पीड हमने लेट सपोज कर ली, उसकी अपनी स्पीड कितनी है? वी रिप्रेजेंटेड इट बाय, हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? एस से. एंड एफ ऑफ कोर्स, अगर हम वो भाग रहा है और इफ ही रन बाय इटसेल्फ तो वो स्पीड एस है. बट इफ ही यूज साइकिल फॉर अ रेस, ऑफ कोर्स तो साइकिल की रेस उसकी रनिंग रेस से ज्यादा तेज होगी, यानी कि साइकिल की स्पीड उसकी अपनी स्पीड से डबल हो गई ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा हुआ है हिज एवरेज रनिंग स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स एवरेज साइकिलिंग स्पीड, यानी कि उसकी अपनी रनिंग स्पीड हाफ है साइकिलिंग स्पीड से, यानी कि साइकिलिंग स्पीड डबल है रनिंग स्पीड से. ओके, एंड क्लास, it's a formula of distance, speed का formula. When we talk about speed, so speed is equal to distance upon time. Please remember this formula, keep it in your mind. Speed is equal to distance upon time. और if we have to find out the time अगर हमें मालूम करना है तो टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी. Is that clear? We can change the terms speed by time and time to speed. Okay, and please remember the points. रनिंग स्पीड उसकी s है और साइकिलिंग स्पीड उसकी 2s है. 2s मीन डबल. द रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है. हाउ? फर्स्ट रेस में वो साइकिलिंग यूज कर रहा है, साइकिल यूज कर रहा है, एंड इन थर्ड सेकंड रेस he runs by itself, okay, by himself. Distance है उसका 25 किलोमीटर when he uses cycle, and average speed of the cycle on cycle of his 2s किलोमीटर पर आवर. क्लास, जब वो डिस्टेंस कितना था उसका 25 किलोमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एवरेज स्पीड उसकी साइकिल पे कितनी है? 2s किलोमीटर पर आवर इज द रिप्रेजेंटेशन. टाइम हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड 25 अपॉन 2s. यहाँ तक समझ आया आपको स्टूडेंट्स? ये नहीं आया? यस समीर, हमजा, अरसलान, बेटा समझ आ रहा है यहाँ तक? बार समझा रहे मिस, ये वाला. यस, व्हाट आर यू सेइंग? एक मतलब
जी रिपीट कर दूं? शुड आई रिपीट? दोबारा समझा दे। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको. लिसन टू मी. यहाँ से देखिए क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड, दिस इज द स्पीड फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ यू वांट टाइम, इफ यू वांट टू नो टाइम, टाइम अगर मालूम करना है तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये रहा ये. एंड वी नो डिस्टेंस कितना था साइकिल पे, 25 किलोमीटर. एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी, 2s. तो टाइम की जगह पर टाइम लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, 25 किलोमीटर. एवरेज स्पीड कितनी थी साइकिल पर, 2s. यहाँ तक लिखकर वी लेफ्ट इट. ओके, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया. इसके बाद यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको, अब नेक्स्ट इस पे हम कौन सा रिलेशन पे जा रहे हैं, रनिंग. नाउ विदाउट साइकिलिंग रेस में उसने कितना डिस्टेंस था उसका, 20 किलोमीटर. जब वो खुद मतलब रनिंग रेस कर रहा था तो 20 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था. एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी खुद की, s, यानी कि साइकिल से हाफ. साइकिल थी डबल एस, 2s, यानी कि डबल डिस्टेंस कवर कर रहा था. और पैदल वो कितना, मतलब रनिंग वो कितना कर रहा था, सिंगल एस, डबल यानी कि सिंगल. तो टाइम डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर. स्पीड कितनी है उसकी, 1s. s रिप्रेजेंट द स्पीड. ओके, सो जो कंप्लीट्स द रेस इन लेस देन 1/2 आवर्स, उसने ये रेस 2.5 आवर्स से कम टाइम में कंप्लीट की. यानी कि 2.5 घंटे से कम टाइम में उसने ये कंप्लीट की. कम मतलब लेस देन 2.5 आवर्स. दोनों को ऐड किया, 25/2s प्लस 20/s. हियर वी एडेड द बोथ रेसेस वैल्यूज यहाँ पर, और दोनों की रेस वैल्यूज किससे कम है, किससे कम है क्लास. यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ. इसके बाद इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व 25/s and 1s. When we take LCM of 2 and 1, 2 and 1 का LCM लेंगे तो क्लास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा s is same in both sides, so s we will write as it is. And when we take LCM of 2 with 1, आंसर विल बी 2. एलसीएम 2 का और 1 का लिया जाता है तो हमेशा 2 आंसर आता है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा 25 1 जा 25 प्लस, it's a cross multiplication involving in this side, and 22 जा 40 is equal to, class it's a mixed rational form. 2 2 जा 4, 4 plus 1 5, 5/2. It's a 5/2. Now class, here we added the number. When we add the number 25 plus 40, it becomes 65/25. Sorry, it's a 2s. It's a 2s, not 25. And 5/2. यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो गई क्लास. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, here 65 multiplied by 2 like this, and here class it's not equality sign is not involving, is less than sign. मतलब 2.5 घंटे से कम में रेस कवर हुई है तो डेफिनेटली ओके. and 2s is multiplied by 5. 65 2s are 2 5 the 10, 2 6 the 12, and plus 1 13. 13 and 2 5 the 10, and s as it is. Remember s represent speed. Speed बात कर रहे हैं हम. 10 1 the 10 and 10 13 the 10 13 the 130. Means जो s आया है मतलब हमारी जो स्पीड आई है वो उसने, यस क्लास, ये इस तरह से इसका सोल्यूशन आ गया. इज देयर एनी कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम देखेंगे क्लास. हियर वी ऑब्जर्व दैट so his average speed running is greater 13 km/h and his average cycling is greater than, means class अगर वो रनिंग कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 13 km/h.
और साइकिल पर था तो उसकी स्पीड डबल होकर कितनी हो गई थी? 13 का डबल कितना होता है? यस क्लास, 13 का 26. डबल, 13 टू जा डबल मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 13 का डबल 26. कितना हो जाएगा? 26। तो 26 किलोमीटर पर आवर उसकी साइकिल के ऊपर होगी। इफ ही रनिंग, अगर वो खुद से रन कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी? 13 किलोमीटर पर आवर। और अगर 13 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी, मीन्स ज्यादा, और अगर वो साइकिल पर था तो 26 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी। डन इट क्लास, यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम एक छोटा सा आज जो है ना एमसीक्यूज का छोटा सा आपका ऑनलाइन में जो है आप लोगों के टेस्ट चेक करूंगी कि आपको कितना समझ आया। ओके, द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड ऑफ अ बॉल थ्रोन डायरेक्टली अप इन द एयर। ये वाला रहने देते हैं, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा शायद। यस, ओके, नो, ओके, हम एक ये वाली एग्जांपल ले सकते हैं। easy example I can give you, puppies. Yes, it's a, there are 8 pups. Listen on the question, please listen and focus on the question. There are more girls than boys. Class, in 8 pups there are more girls than boys. Puppies में 8 गर्ल्स की क्वांटिटी ज्यादा है और बॉयज के मुकाबले में। ओके, हाउ मेनी गर्ल पप्स कुड देयर बी? First of all, the number of girls represented by G, the number of boys represented by B. Pups में girls को G से represent किया, boys को B से represent किया, and we know that girls plus boys total number of जो उनके pups थे girls के boys के वो कितने थे? How many numbers? 8. As you can see in the question, it is given in the question, girls, number of girls plus number of boys, the sum of number of girls and boys is equal to 8 in the, okay class। अब आपको ये बताना है now you will have to tell। अब देखिए b इधर प्लस है, g इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। Minus. g we say that b is equal to 8 minus g। now it is given in question, ये हमें क्वेश्चन में given है more girls than boys। more girls than boys in the pup means girls quantity, number of girls are more than boys। ये हम इस तरह से maths में लिखते हैं, this is the language of maths। girls more than boys means girls more than greater than boys, okay, in number of quantity। we are being asked for number of girls pup। अभी हमें exactly तो नहीं पता कि girls कितनी हैं pups में, मे बी वो 4 हैं, मे बी वो 5 हैं, 6 हैं, we don't know the exactly number। okay, according to question g is greater than b, और हमने b को भी ये पॉइंट आउट किया कि b is equal to 8 minus g। we put the value of b 8 minus g, ये तो माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा क्लास? प्लस 1g and 1g added, ये कितने हो जाएंगे? 2g। ओके, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओनली g। 2 हमें नहीं चाहिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो क्लास g जो है b से ग्रेटर है, तो मे बी पॉसिबल 5 6 7 और 8 could be there 8 girl pups, there would be, अगर 8 गर्ल्स होती हैं पप के अंदर तो मे बी पॉसिबल कि बॉयज की क्वांटिटी ना हो उसके अंदर। so this is our answer। done class? is there any Yes. confusion? में से जी का yes समझा? देखिए वापस समझा दे एक बार। एक और दफा रिपीट कर दो हमजा। Yes. okay, question, in question you have given 8 pups, okay, number of pups you have given in 8, quantity in which girls are more than boys, and you don't know the exactly number of girls in the counting, so number of girls is represented by g, number of boys is represented by b। we know that there are 8 pups, total number of girls plus boys we have 8, so b is b। अब हमें बॉयज का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जी द प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा?
माइनस. सो एंड वी नो दैट इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमें ये पता है कि गर्ल्स जो है बॉयज से क्वांटिटी में ज्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमने इसमें ये देखिए, ये G इज ग्रेटर देन B. G एज इट इज, B की जगह पर इन प्लेस ऑफ B वे पुट 8 माइनस G, बिकॉज 8 में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो जो बाकी द लेफ्ट नंबर ऑफ कप्स आर बॉयज. इसका मतलब ये है. ओके, इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस. 1G प्लस 1G बिकम 2G and 2G is greater than 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8. मीन्स गर्ल्स जो है 4 नंबर से ज्यादा है. मे बी पॉसिबल कि वो 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो. Okay class, now this is the time to take a small let's check out your question, little bit of MCQs hai. It's a MCQs exercise, okay? And you will tell me which is the correct option. आपको ये बताना है कि इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है. एंड प्लीज ध्यान से लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और यू कैन यूज द पेंसिल और कॉपीज ऑल्सो. ये हम पेंसिल और कॉपीज की मदद से भी सॉल्व करेंगे. ओके, क्लास 6 इज एडेड टू अ नंबर x. x is a number. Okay, x is a number. 6 is added to a number. क्लास उन्होंने कहा है कि 6 जो है x में ऐड हो रहा है. ओके, then the result is multiply by 9. उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराया? 9 से. एंड फाइनल आंसर इज ग्रेटर देन 99. फाइनल आंसर हमारा किससे बड़ा आया? 99 से. आप मुझे बताएंगे, यू विल टेल मी व्हिच इज द राइट रिलेशन ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द क्लास, ये जो है ना सेंटेंस में हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमें सेंटेंस में गिवन है, एंड वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन. हमने इसका इक्वेशन का रिलेशन बताना है. आप मुझे बताइए, वेरी इजी, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आपने बस मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. बताइए. A. Miss G. Sameer is saying A. Okay, Sameer. Miss And G. Hamza, what are you saying? B. Okay, and Arsalan, what are you saying? What do you think? Which option is right? G. Arsalan, please say quick. Sorry, Arsalan, say it again. C. C. Okay. Acha, I am repeating the question. See, 6 is added to a number x. 6 number x में add हो रहा है. Then the result is multiplied by 9. Final answer is greater than 99. आपका आंसर यहाँ तक डन है. आपने कहा A, एक ने कहा B, एक ने कहा C. Let's see the question. हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं. Wait a minute. Its answer is option greater than 99. Option B is right because ये देखिए क्लास, ऑप्शन बी ऐसे है, add 6 with a number. ये देखिए x एक नंबर था, उसमें हमने 6 को क्या किया? ऐड किया. एंड मल्टीप्लाइड बाय 9. क्वेश्चन में गिवन है हमें, इस नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? पूरे ब्रैकेट को 9 से. और आंसर हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटर देन 99. ग्रेटर देन 99 इस तरह से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ आया? यस समीर, हमजा, जुलेखा, अरसलान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब प्लीज ध्यान से बताइएगा. A number z is multiplied by 4. Class, z is multiplied by 4. ध्यान से सुनिए. 8 is subtracting from the result. मतलब z multiply हो रहा है 4 से, means 4 multiply by z, and 8 is subtracted from the result. अब उसमें से वो जो आंसर है, the answer in which 8 is subtracting, उसमें से 8 क्या हो रहा है? Subtract. Final answer is greater than or equal to 28. Final answer is greater than or 28. अब आप मुझे बताइए. Now you will tell me which option is right. A, B, C or D? One by one. Okay, one by one. Yes, Sameer, what do you think? Which option is right? D. Sameer, you're saying B. Okay. Hamza and Zulaikha. A answer is right. Okay, and Zulaikha, what do you think? Okay. Yes, Miss A. Okay, Arsalan.
Miss D. D. Okay. I think D or I'm not thinking it's right. D option is correct. Very good, Arsalan. Like because Z is a number and multiply by 4. 4 को Z से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4Z. 8 is subtracted from the result. 8 इसमें से क्या हो रहा है? Subtract हो रहा है. And the final answer is greater than or equal to. Class greater than and equal का जब word use हो रहा है तो ये वाला symbol use होगा. It's a 28. Got it, class? यहाँ तक समझ आया? Yes. Okay, next question. Write this mathematical sentence using algebra. ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के 7 क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी और आपने बताना. ओके. A number p is multiplied by 3. Class, it's a number p is multiplied by 3. Then 10 is added. Very easy answer. 10 उसमें add हो रहा है उस result में. And then added to the result. Final answer is less than 31. Less than 31. P number is multiplied by 3. 10 is added. And the final answer is less than 31. Now class, tell me which option is right. Sameer, Hamza, Arsalan and other students. Yes, Sameer, what do you think? Which option is correct? C. C option is correct. Sameer, think once again. Miss A. A option is correct. Okay. And Hamza, what do you think? Hamza and Zulekha? Miss B. B option. Okay. Arsalan, what do you think? C. Okay. Zulekha, what are you saying? Yes, Zulekha. Miss B. Okay. B. And other students, Amna and who is the next? Karma. Yes, Amna. Tell me your answer. Miss A. A. Okay. And Karma, what do you think? Which answer is right? Miss A. Okay. Very good. Because देखिए, A option is correct. P is multiplied by 3. 10 is added. Final answer is less than 31. Option A is correct. Okay. P is the number and 3 is multiplying and 10 is added. Final answer is less than 31. Got it, class? Amna is right and Ikarma is also right. Okay, very good. Now let's see the next question. Gloria starts with 5 times as much as honey as Hamish. Okay. Gloria gives $8 to Hamish and then Hamish has more money than Gloria. Class, Gloria के पास 5 टाइम मनी ज्यादा है हमीश के मुकाबले में. ओके. ग्लोरिया के पास 5 टाइम मनी ज्यादा है. मीन्स कि अगर हमीश के पास 5 रुपीज है तो ग्लोरिया के पास 25 होंगे. 25 5 टाइम मतलब डबल है. ग्लोरिया ने हमीश को $8 दिए तो हमीश के पास अब पैसे ग्लोरिया से ज्यादा हो गए. उसके बाद इफ हमीश स्टार्ट विद $H, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इक्वालिटी फॉर H. अगर हमीश $H देना शुरू करे, स्टार्ट करे, तो बताइए कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी. यस क्लास. ऑप्शन ए इज राइट इन विच 5H plus 8 or H minus 8. Yes class, what do you think? Gloria starts with 5 as much as money as Hamish. यानी कि ग्लोरिया ने 5 टाइम हमीश के मुकाबले ज्यादा मनी दी है. अगर ग्लोरिया हमीश को $8 देती है तो बताइए हमीश ग्लोरिया गिव्स $8 टू हमीश. ग्लोरिया ने हमीश को $8 दिए. देन हमीश हैज मोर मनी देन ग्लोरिया. अब हमीश के पास ग्लोरिया से ज्यादा रुपीस है और हमीश ने अगर $S देना स्टार्ट किए तो बताइए कि कौन सी इनइक्वालिटी करेक्ट होगी. यस क्लास, एनी आइडिया? क्लास, एनी आइडिया? Miss B. Miss B. Miss B. Okay. We see that Gloria starts with 5 times as much as Hamish. Gloria gives $8 to Hamish. Miss D. D. Let's see the question option. Very good, Zulekha, you are right.
हमेश के पास कितने डॉलर थे, उसने कितने स्टार्ट किए थे, $H से स्टार्ट किए थे। ग्लोरिया के पास 5 टाइम मनी ज्यादा था एज कम्पेयर टू हमेश, तो ग्लोरिया ने कितने स्टार्ट किए, $5 से। हमेश ने 8 में भाई हमेश के पास $8 ज्यादा हो गए, तो उसने ये ऐड किया, और ग्लोरिया के पास $8 से कम हो गए क्योंकि उसके पास ज्यादा थे। ओके, तो क्लास दिस वी हैव डन द प्रैक्टिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3B है हमारे सामने। अब आपको ये खुद रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन इज गिवन इन द वर्डिंग फॉर्म एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ओके, यू हैव गिवन क्वेश्चन ऑन अ वीकेंड। क्लास आपको ये बताना है, on a weekend a movie ticket costs $10.550 from an inequality, and solve it to find the maximum number of tickets cat can buy with $205। क्लास यहाँ पर आपको ये बताना है कि वीकेंड पे मूवी टिकट वो टिकट की कॉस्ट, मूवी टिकट की कॉस्ट कितनी है। हम यहाँ पे डेटा बनाएंगे, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये मैथ्स के एक्सरसाइज 3B है। डेटा, इन डेटा यू विल राइट मूवी कॉस्ट, और यू कैन राइट मूवी टिकट कॉस्ट, मूवी टिकट कॉस्ट। ओके क्लास, yes class, how much price of the ticket, $10.50, okay, and then number of cat can buy with $cat के पास कितने मनी है, मनी कितना है भाई उसके पास, डॉलर के पास कितने रुपीस हैं, $205। कैट के पास $205 का अमाउंट है। हम अमाउंट कह सकते हैं, इट इज बेटर इफ यू यूज अमाउंट। अमाउंट कितना है कैट के पास, अमाउंट ऑफ $205। इफ वन टिकट कॉस्ट 10.50 एंड अमाउंट इज 205, तो 205 में तो हम ये रिलेशन ऐसे बनाएंगे क्लास, 10.50 इज द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ वन टिकट। ये देखिए, ये टिकट का कॉस्ट है। एक्स इज यूजिंग एज अ कॉस्ट ऑफ टिकट्स, ये टिकट का कॉस्ट है। एंड देन यस क्लास, अब आप मुझे बताइए क्लास कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो कैट खरीद सकती है। इज देयर एनी आइडिया क्लास? हम इसमें यूज करेंगे सिंबल, यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर सिंबल यूज होगा लेस देन इक्वल का और 205 का। क्लास ये टोटल नंबर ऑफ कैट के अमाउंट है। देखिए ये है एक टिकट की कीमत और कैट के पास कितने हैं, 205। आपको बताने हैं कि कैट कितने टिकट ज्यादा खरीद सकती है। ओके, अब आप देखिए क्लास, नाउ यू कैन सी दैट आप ये जो $10.50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। 205 डिवाइडेड बाय 10.50। यस क्लास, आंसर आपका क्या आएगा? इज देयर एनी आइडिया? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आंसर आपका जो भी आएगा, आई थिंक वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 19 आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो आपका जो आएगा वो है, यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स कैट $205 में 19 टिकट्स परचेज कर सकती है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? रिपीट कर दूं ये क्वेश्चन? ओके मिस, यहाँ पे ये ग्रेटर देन क्यों बना? देयर, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो कितने टिकट खरीद सकती है।
तो x का मतलब है नंबर ऑफ टिकट्स, ज्यादा से ज्यादा, तो लेस देन इक्वालिटी का साइन इसलिए यूज किया। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, मतलब उसके बाद नंबर ऑफ टिकट ज्यादा भी आ सकते हैं 19 से, नंबर ऑफ टिकट्स कम भी आ सकते हैं 19 से, राइट? एंड देन ना तो हम नहीं बनाएंगे। ओके, डन क्लास, यहाँ तक डन है? ओके, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। वी कैन पे मूवी टिकट के कितने हैं उसके 10.50 रुपीज का एक टिकट है मूवी का टिकट कॉस्ट, एंड कैट हैज अमाउंट $205, so relation you have 10.50 one ticket cost and total cost of the cat has $205. तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। so cat can buy 19 tickets with the help of $205. Done class? Okay. यस यस। ओके डियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस अब हमारा थोड़ा सा क्लास अभी हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी।